السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کیا گیا، صاف دل والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ متقی اور پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض اور حسد نہ ہو۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ واشنگٹن ڈی سی میں آٹا کی 17ویں کنونشن میں رکن قانون ساز کونسل کویتا، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کا شاندار استقبال و خطاب۔ ٹی آر ایس و کے سی آر کے پورے ملک میں بڑھتی مقبولیت سے بی جے پی خوفزدہ، بی جے پی اجلاس کا تلنگانہ میں انعقاد، ان کے خوف کو کر رہا ظاہر پی یو سی کمیٹی چیئرمین و ٹی آر ایس ضلع صدر جیون ریڈی۔ اراضی تنازع کو لے کر دو گروپوں کے درمیان چاقو زنی کاماریڈی سے پیش آیا واقعہ، محکمہ پولیس کی جانب سے کارروائی کا آغاز۔ ریفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نظام آباد کی جانب سے نوجوان و تاجروں کے لیے شعور بیداری اجلاس کا انعقاد و تجارتی تعلقات و اسلامی طرز تجارت سے کروایا گیا واقف۔ بقرعید کے لیے صرف 8 دن باقی، قربانی کے جانوروں کی آسمان چھوتی قیمتوں سے متوسط طبقے کی عوام پریشان تو بارش کے سبب تاجرین خوفزدہ۔ باسر پوجا کے لیے آنے والا شخص غرقاب، غوط خوروں کی کڑی محنت سے نعش کو نکالا گیا باہر، افراد خاندان میں غم کی لہر۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بقرعید کے لیے صرف 8 دن باقی، قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت میں اضافہ، آسمان چھوتی قیمتوں کے باوجود بھی سنت کی تکمیل کے لیے عوام پرجوش انداز میں تیار۔ بقرعید کے لیے صرف 8 دن باقی ہے، لیکن رواں سال جانوروں کی خرید و فروخت میں شہر میں تیزی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ رواں سال ہر کوئی گاؤں و بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ کل وے ساٹا پور بازار میں بھی خریداروں کا کافی بڑا ہجوم رہا اور جانوروں کی بولی بھی کچھ اسی طرح کی رہی۔ اس کے علاوہ چیک پوسٹوں کے قیام اور مارکیٹ نہ لگنے کی عہدیداروں کی ہدایت کے باوجود بازار کافی عروج پر رہا، لیکن آسمان چھوتی قیمتوں کے سبب بیشتر افراد خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن شہر میں بھی ابھی تک جانوروں کی خرید و فروخت میں زیادہ کچھ گرمی پیدا نہیں ہو سکی، جس کی وجہ رواں سال قیمتوں میں زیادہ اضافہ اور خریداروں کا راست بازار و گاؤں سے جانوروں کا خریدنا ہونے کا شہر کے تاجروں نے اظہار کیا۔ اس کے علاوہ موسم بارش میں جانوروں کو ہونے والی بیماری سے بھی ڈر کر کئی افراد قربانی کے لیے جانور نہ خریدنے کا اظہار کیا۔ ان سب کے باوجود رواں سال قربانی کے جانور تجارت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ماہر تاجر جو ہر سال یہ کاروبار کرتے ہوئے وہ بازار کے ہر اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہوئے منافع بنا رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز کی وصولی کے باوجود ڈیولپمنٹ ارسپلی الیکٹریسٹی سب اسٹیشن سے دور، بار بار برقی کٹوتی سے عوام بیزار۔ اگر رات کو برقی جائے تو صبح تک انتظار کرنے پر مجبور، ایسا کیوں؟ ایک سوال۔ ایک جانب دن بدن برقی بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو سال در سال نئے چارجز بھی وصول صارفین سے جبراً وصول کیے جا رہے ہیں، جس کو ڈیولپمنٹ چارجز کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن یہ چارجز صرف محکمہ برقی کی صرف جیب گرم کرنے کے نام کے لیے ہے، جس کی ایک زندہ مثال شہر کے علاقے بودھن روڈ پر واقع ارسپلی سب اسٹیشن کی ہے، اور اس سب اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے کے عوام کو اب برقی کٹ ہونے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہر آئے دن ان علاقوں میں برقی جانا ایک عام بات ہو گئی ہے، جس کے بعد
وہ ذمہ دار عہدیداروں کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب عہدیداران کے فون کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے تب عوام مجبوراً اس سب اسٹیشن پر جمع ہو کر اپنا احتجاج درج کرواتی ہے اور یہاں پر کام کرنے والے عہدیداروں کے لیے اب یہ بھی ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس سب اسٹیشن کو محکمہ برقی کی جانب سے کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کیا گیا، جبکہ یہاں پر رہنے والے تمام صارفین سے ڈیولپمنٹ چارجز وصول کیے گئے اور صرف اسی سب اسٹیشن کو کیوں ڈیولپمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے چنندہ قائدین ابھی بھی خواب غفلت میں ہیں؟ کیا سوال۔ امریکہ تیلگو ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ 17ویں آٹا مہاسبھا میں شرکت کرنے کے لیے اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کے واشنگٹن ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر ٹیارس امریکہ سے وابستہ قائدین کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا نے امریکہ تیلگو ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ 17ویں آٹا مہاسبھا میں شرکت کرنے کے لیے واشنگٹن ایئرپورٹ میں آمد کے موقع پر ٹیارس امریکہ سیکشن سے وابستہ قائدین و عوامی نمائندوں کی جانب سے پرزور استقبال کیا گیا۔ اس اجلاس میں اب تک ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پریشان ریڈی، ایرا بیلی دیاکر راؤ، ملا ریڈی، MLA جی کشور، آٹا کے ممبران و دیگر نے شرکت کی۔ تجارت میں ترقی و نئے تجارت کے مواقع نوجوانوں کو واقف کروانے کے لیے رفات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نظام آباد کی جانب سے شہر میں شعور بیداری اجلاس کا کامیاب پیمانے پر انعقاد۔ آج شہر نظام آباد میں رفات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نظام آباد کی قیادت میں شہر نظام آباد کی تجارتوں سے جڑے مسائل کی حل و ان کی عمارت کی ترقی کے لیے ایک اجلاس بعنوان اوور کم یور بزنس چیلنجز کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی قومی ذمہ دار صلاح الدین، ریاستی صدر تنظیم محمد یوسف علی خان شجاع الدین و صدر نظام آباد وسیم اقبال نے شرکت کرتے ہوئے نوجوان تاجروں کو نئے تجارتی طریقوں سے واقف کروایا۔ اسی طرح بحیثیت تاجر اور اسلامی اصول و ضابط سے بھی شرکاء کو واقف کروایا اور ان کی تجارت میں ترقی کے لیے ملی امداد و حکومت کی اسکیمات سے واقف کرواتے ہوئے ہندوستان کے مختلف حصوں میں موجود تجارتوں سے انہیں جوڑتے ہوئے کام کرنے کے لیے راستے فراہم کیے۔ اس موقع پر نظام آباد ذمہ دار توفیق احمد، حلیم قمر، امیر خان، شیخ غوث و دیگر موجود تھے۔ اس کو حاصل ہوگا۔ اب آئیے میں مختصراً بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی جدوجہد جس کے حصول کی زندگی کب سے شروع ہوئی اور کن لڑائیوں سے گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تب سے آپ کی معاشی جدوجہد شروع ہو چکی۔ 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی دکان پر دوپہر سے شام تک بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ بکریاں چرانے لگے، خود کے لیے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں جو ہے اجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے۔ پھر 14 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارت کے خاتمے میں آپ نے شرکت کی، آپ تجارت کے خاتمے میں حصہ لیا۔ اس وقت یہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی طرح کا بزنس ہوتا تھا جس میں شہر کے سارے لوگوں کا مان لگتا تھا اور لوگ جا کے تجارت کر کے سب کا منافع سب کو دیتے تھے۔ تو گرما میں سیریا کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے اور سردی کے دنوں میں یمن کی طرف جاتے تھے تو جو گرم علاقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، اور پھر 14 سال کی عمر میں آپ نے 14 سال میں پہلا سفر آپ نے کیا۔ پھر 18 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے کام کیا، یعنی سرمایہ کسی اور کا تھا اور آپ جو ورکنگ پارٹنر کی حیثیت سے آپ نے خدمت انجام دی بزنس کے اندر تجارت کی۔ پھر اس کے بعد آپ شراکت دار کی حیثیت سے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عازمین عمرے کے لیے اچھی خدمات کے ساتھ ہمہ وقت تیار لبیک ٹریول سروسز برانچ نظام آباد کا افتتاح۔ مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء نے دعا فرما کر آفس لبیک ٹریول سروسز برانچ نظام آباد کا افتتاح کیا اور ذمہ داران کو مبارکباد دی۔ مفتی عبد المبین قاسمی، محمد فیاض الدین، مالک لبیک ٹریول سروسز، مولوی عبد العلیم فاروقی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ضلع انچارج مولانا عبد القیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ ضلع نظام آباد سے سفر مقدس عمرہ و زیارت روزہ مبارک کی غرض سے جانے والے عازمین عمرے کے لیے شہر نظام آباد میں اب تمام تر
सहूलियात फराहम रहेगी। इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम और माह अगस्त के लिए बुकिंग जारी रहेगी। उलमा कराम व मुफ्तियान निज़ाम की रहबरी में तरबियती इज्तिमात मुनक़िद करके सफ़र और इसी तरह इबादत में पेश आने वाली तमाम तर दुश्वारियों को आसानी से हल करके काफिले रवाना किए जाएंगे। 35 साल ट्रैवलिंग तजुर्बा रखने वाला इदारा लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज से इस्तिफादा करे। इंशाअल्लाह उम्दा और साफ व शिफाफ रिहाइश मक्का और मदीना दोनों मुकामात पर करीब तरीन होटल्स और ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत, तीनों वक्तों का खाना, कपड़े व दीगर सहूलियात फराहम की जाएगी। ज़िले निज़ामाबाद के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की जाती है कि हमारे खदमात से इस्तिफादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर रियासतों और अजला में हज़ारों की तादाद में लोगों का रुजू है। अब आपके ज़िले निज़ामाबाद में भी लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज का ब्रांच कायम हो चुका है। किसी भी वक्त ऑफिस पहुँच कर या बज़रिए फ़ोन राब्ता करके तफसीलात हासिल कर लें। और इस सफ़र उम्रे के लिए आप खुद और अपने मुतालिक़िन रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को भी तैयार करके ग्रुप बनाएं। इंशाअल्लाह मक्का मदीना के अलावा दीगर मुकामात मुक़द्दसा पर मौलिम की निगरानी में ज़ियारत कराई जाएगी। हमारा पता है लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज, हरमिन कलेक्शन, नज़द बिलाल मेडिकल, बोधन रोड, निज़ामाबाद। मोबाइल नंबर 9866947440 और 9948047179। इस मौके पर मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना फेरोज कासमी, मौलाना अबरार कासमी, मुफ्ती महमूद, मुफ्ती माजिद, मुफ्ती जुबैर के अलावा मोहम्मद अफजलुद्दीन, वसीम अहमद खान, सादतुल्लाह, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद हुसैन खान व दीगर ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर बोधन रोड बिलाल मेडिकल के पास लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज का दफ्तर का आगाज़ अमल में आया और हमारे इस ऑफिस से इंशाअल्लाह आज़मीन उम्रा और आज़मीन हज की बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज जो गुज़िश्ता 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस रियासत के अंदर तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर बखूबी अपनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है और लोग इस खिदमत से मुतमईन भी हैं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की तकलीफ़ होने नहीं दी जाएगी और यहाँ शहर निज़ामाबाद के अंदर भी ज़िले निज़ामाबाद के जितने भी मुसलमान हैं और उम्रे का इरादा करते हैं तो वो हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह इस ट्रैवल के ज़रिए आपको वहाँ तक भेजा जाएगा और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर आपको बताने की हैं, मकामात मुक़द्दसा हों और दीगर ज़ियारत वाली चीज़ें हों, इंशाअल्लाह हर जगह पर आपको पहुँचाया जाएगा और इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की तकलीफ़ होने से आपको बचाया जाएगा। क्योंकि लब्बैक ट्रैवल सर्विसेज की जो खिदमत और सर्विस है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इत्मीनान, काबिल एतमाद है। यहाँ हरमैन कलेक्शन, नज़द बिलाल मेडिकल, यहाँ मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब जितने अहबाब यहाँ पर रहेंगे इंशाअल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश की जाती है कि यहाँ अपना पासपोर्ट जमा कराएं और इसके अलावा पासपोर्ट भी रहेंगे जी पूरी वीज़ा की सर्विस है, हमारा ये स्टैंपिंग वगैरह होता है, दुबई विजिट वीज़ा है, टिकटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों को रास्ता कर सकते हैं। और जो अहबाब पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर खिदमत और सर्विस यहाँ पर दी जाएगी, वो भी रब्ता कर सकते हैं। और जिनका पासपोर्ट बना हुआ है वो लोग अपना पासपोर्ट जमा करके यहाँ उम्रे के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। इंशाअल्लाह अभी नेक्स्ट मंथ के लिए बुकिंग जारी है। अगस्त के लिए 10 से 15 के दरमियान में इंशाअल्लाह पहला ग्रुप जाएगा। तो आप अहबाब से तमाम मुसलमानों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस सिलसिले में पेशरफ्त करें और अपना नाम इस मुक़द्दस सफ़र के लिए दर्ज कराते रहें। ट्रैवल सर्विसेज गुज़िश्ता 35 सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहा है और हौसलों को भी अंजाम देते आ रहा है। रियासत तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी सब जगह हमारे ब्रांचेस हैं और अब निज़ामाबाद में भी हमारे को ब्रांच खोलने का मौका हो रहा है। यहाँ पे हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल कासमी साहब और मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी साहब हैं इदारा और आपसे अपील करता है कि आप अपने दोस्त अहबाब तो मुतालिक़ीन के साथ यहाँ पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा आपको खिदमत का मौका देंगे। भैंसा ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के वफद ने किया मुख्तलिफ मदारिस का दौरा, वो उर्दू की बका व तरक्की के लिए की कोशिशें तेज़। ज़िले निर्मल सदर शेख अहद साहिल, भैंसा सदर शेख इरफान की ज़ेर सदारत में ट्रेन टीचर्स का एक वफद भैंसा शहर के मुख्तलिफ मौज़ूआत एलिगांव, कामुल, पसपुर, पेंटपली, मिर्ज़ापुर के अलावा दीगर मुकामात का दौरा करते हुए उर्दू मीडियम के मुकम्मल हालात का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर इस वफद औलिया तलबा से भी फ़र्दन मुलाकात करते हुए उर्दू की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा स्कूल ज़िम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उर्दू स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद
और तलबा को दिए जाने वाली तालीमी अशिया से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। इस मौके पर भैंसा सदर शेख इरफान ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए उर्दू स्कूल की खस्ता हालत का मुकम्मल खुलासा किया और रियासती हुकूमत को उर्दू दूसरी जुबान होने का भी याद दहानी करवाई और उर्दू के साथ इंसाफ किए जाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस वफद में ज़िले जनरल सेक्रेटरी अफरोज खान, तर्जुमान मोहम्मद मुजाहिद अहमद फराज, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी उमर खान, मोहम्मद मजहर, दानिश, मोहम्मद जुबैर, सीर साकिब के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी तेलंगाना की तरक्की से सबक सीखने का ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने असम्बली के टीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया के जरिए किया खिताब। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने असम्बली के टीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर को पान इंडिया पॉलिटिकल सुपरस्टार करार देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म मोदी की 8 साला दौरे इख्तिदार में मरकज़ की जानिब से किन किन शोबे में मुल्क ने तरक्की की, हर रोज़ मरकज़ की जानिब से जमहूरियत और वफाकी निज़ाम को ख़त्म करने के बायस मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में होने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला करके अनक़रीब सबक सिखाने का इजहार किया। గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ యాడ్స్ మా యాడ్స్ మా మీడియా మిత్రులకు తెలియజేయాలి। మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పనులు సూటిగా డైరెక్ట్గా మోడీ గారు కనబడే విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ తెలిసే విధంగా మేము చేసిన పనులను ఒకవైపు ఈ మా ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా ఈ విధంగా యాడ్స్ ఇచ్చినాం। ఏమి ఇచ్చినాం? యాడ్స్లో 24/7 ఉచిత విద్యుత్, రైతు బంధు, రైతు బీమా, అన్నపూర్ణ తెలంగాణ, ఏ విధంగా మరి రైతు రుణాల మాఫీ, సాగునీరు, తాగునీరు, తెలంగాణ సస్యశ్యామలం, వరి ఉత్పత్తి, వరికి మద్దతు ధరతో పాటు అనేక రైతు వేదికలు, రవాణా పన్ను రద్దు చేసిన విషయాలన్నీ మేము చేసినాం। ఇవి మా యాడ్స్ చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా వార్ హీరో, మా తెలంగాణకి స్వాతంత్రం తెచ్చిన వ్యక్తి గురించి మేము పొగుడుకుంటా ఇవన్నీ ఇచ్చినాం। మరి ఇక్కడ దేశంలో 8 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి, గతంలో ఇండియాను దోచుకోవడానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినట్టుగా ఇప్పుడు తెలంగాణ మీద నజరబడి తెలంగాణ అభివృద్ధిని దోచుకోవడానికి, తెలంగాణలో వనరులను దోచుకోవడానికి నార్త్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చింది। ఆ నార్త్ ఇండియా కంపెనీ ప్రతినిధే ఈ మోడీ గారు, దాంట్లో డైరెక్టర్లు। वाशिंगटन डीसी में आटा की 17वीं कन्वेंशन में रुकन कौंसिल कविता ने तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA के 17वें कन्वेंशन और यूथ कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में मुकीम तेलुगु अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से आगाह करने ATA कन्वेंशन में तेलंगाना पवेलियन का क़याम बड़े फ़ख्र की बात है। मोहतरमा कविता ने खिताब जारी रखते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि एक ज़माने में NT रामाराव ने मुल्क में तेलुगु अवाम को पहचान दी थी और इस दौर में केसीआर तेलंगाना के अवाम को दुनिया भर में पहचान दे रहे हैं। रुकन कौंसिल कविता ने ATA की जानिब से तेलुगु तहजीब से आगाही के लिए किए जा रही कोशिशों की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की कि अगर अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन शहरों में खेलों के लिए क्वार्टर्स कायम करे और तेलुगु तहजीब और रवायत को फ़रोग़ देने के लिए म्यूजियम बनाए तो ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। TRS कायद ने बताया कि मालदीव और मारिश के तमाम तेलुगु अवाम ने तेलुगु जुबान और तहजीब को बरकरार रखने और फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत और तेलुगु यूनिवर्सिटियों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। MLC के कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ATA को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि अमेरिका में तेलुगु अवाम की आने वाली नस्लों को तेलुगु तहजीब और रवायत से वाकिफ करवाया जा सके। इसी दौरान TRS रुकन खानुसाज कौंसिल कविता ने बदकामा पर तहरीर करदा खुसूसी किताब की भी रस्म इजरा अंजाम दी। इस तकरीब में ATA के बानी रुकन हनुमंत रेड्डी, TRS NRI सेल और तेलंगाना जागृति के नुमाइंदों के अलावा NRIs की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। ATA के 2 बुनियादी रहनुमा असूल कम्युनिटी का इत्तेहाद और सालिमियत है जो पूरे अमेरिका में तेलुगु तहजीबी विरासत, इक़्तिदार और तेलुगु नस्ल के लोगों की तरक्की के वाहिद मकसद के साथ तश्कील दिए गए हैं, जिसका नारा हमारी तहजीब के लिए जोश व जज्बा, हमारे लोगों के लिए हमदर्दी है। 17वें ATA कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों के तेलुगु दानिश्वरों, टेक्निकी माहिरीन, डॉक्टरों, मशहूर ताजिरों, तहजीबी और अदबी माहिरीन की सलाहियतों को पेश किया गया।
मज़कूरा तकरीब 1 जुलाई ta 3 जुलाई वाशिंगटन DC में वाल्टर E कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद रहे। काबिल जिक्र बात यह है कि कविता की ज़ेर क़यादत सकाफती तंजीम तेलंगाना जागृति ने पिछले साल बुर्ज खलीफा में बतकमा की झलकियाँ पेश करते हुए तारीख रकम की थी। అందరికీ నమస్కారం। మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ పెవిలియన్ని ఈసారి ఓపెన్ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషం। అదేవిధంగా బతుకమ్మకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ఇప్పుడు మనందరం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండే మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆట అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్ అనుకుంటారు। తెలుగు వారికి తెలంగాణకి కేసీఆర్ గారు గుర్తింపు తెచ్చారో అదేవిధంగా అమెరికాలో తెలుగు వారికి ఆట గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। చాలా మంది మరి సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు। మీరు కన్నవారిని ఉన్న ఊరిని చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టుకొని అమెరికాకు వచ్చి మీ మేధస్సుతోని స్వయంగా ఎదిగి కేవలం ఒక తెలుగు వాళ్ళమే కాదు భారతదేశం అంతా గర్వించేటటువంటి ఎత్తుకు ఇవాళ తెలుగువారు ఎదిగారు। हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले संकल्प महायात्रा में शिरकत करने के लिए निजामाबाद रूरल हल्के इंदलवई टोल प्लाजा के पास हैदराबाद रवाना होने वाली गाड़ियों का बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश कुमार ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया। निजामाबाद रूरल इंचार्ज दिनेश कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ही नरेंद्र मोदी के संकल्प महायात्रा में आमद के मौके पर निजामाबाद रूरल हल्के के तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी क़ायदीन व कारकुनान की भारी तादाद हैदराबाद में मुनाक़िदा जलसिया में शिरकत करके कामयाब बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रिजपली एमपी जी भूमन्ना, इंदलवी मंडल बीजेपी सदर नायडू राजन्ना, बीजेपी जिले के नायब सदर के रेड्डी व दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले सुदूर महिला मोर्चा सुदूर सुनीता व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి భారతీయుడు నేను సైతం నరేంద్ర మోడీ అని చెప్పి తనను తాను నరేంద్ర మోడీగా ఊహించుకుంటూ తాను ఈ దేశ సేవ కోసం భారతదేశ యొక్క అఖండ సౌభాగ్యం కోసం रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में मुनाकिदा बोनाल त्यौहार में शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में मुनाकिदा दुर्गा माता बोनाल तकरीब में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए बोनाल त्यौहार के मौके पर अवाम को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए 70 लाख रुपए मालीती रकम से दुर्गा माता फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाई गई। इस फंक्शन हॉल में अवाम से किराए के तौर पर सिर्फ 5,000 रुपए लिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम कम खर्च से तकरीब मनाने के लिए हल्के में 80 फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाई गई और मंदिर की तामीर के लिए 25 लाख रुपए मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, सिटी के अवामी नुमाइंदे, TRS कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। అమ్మవారి దర్శనానికి నిండు బోనాలతో సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఆడబిడ్డలకు, ఆడపడుచులకు, అక్కజల్లెలకు హృదయపూర్వక ఈ బోనాల శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను। సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా హైదరాబాద్ లో మన గోల్కొండ బోనాలు కూడా ప్రారంభించబడ్డాయి। ఈ ఆషాఢ మాసం మొత్తం బోనాల పండుగ జరుగుతుంది। ఈ బోనాల పండుగ సందర్భంలో లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది जिले कामारेड्डी के मुकाम पर चाकू जनी की वारदात पेश आई। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर बेवनीपली भगत सिंह मुजस्सिमे के अहाते में वाक़े प्लाट के तनाज़े में होने वाले झगड़े के बाइस बरहमी का शिकार स्वामी नामी शख्स ने नरेंद्र राव संतोष नामी अशखास पर चाकू से हमला करने की बिना पर जख्मी हो गए, जिसे मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर कामारेड्डी के खानगी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहाँ पर वो ज़ेर इलाज है। ताहम मुतासर अफराद खानदान की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाइस पुलिस मुलाजमिन ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। कलेक्ट्रेट AO के तौर पर प्रशांत कुमार ने लिया अपने ओहदे का जायजा। निजामाबाद रूरल तहसीलदार के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले को कलेक्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट के तौर पर तबादला अमल में लाते हुए कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट AO के तौर पर प्रशांत कुमार को मुंतखब करने के बायस बरोज़ हफ्ता इन्होंने अपने ओहदे का जायजा लेने की बिना पर दफ्तर में मौजूद मुलाजमिन व दीगर की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई।
महाराष्ट्र में वाक़ बाबली प्रोजेक्ट गेट के दरवाजे खोलने के बायस SRSP में 1.237 TMC पानी का इनफ्लो दाखिल होने का AEE रवि ने किया इजहार। AEE रवि ने कहा कि SRSP में एक ही दिन में 1.237 TMC ज़ख़ायरा दाखिल होने का इजहार करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में वाक़ बाबली प्रोजेक्ट के गेट इस माह की 1 तारीख को खोलने के बाद दीगर बालाई इलाकों से 1.237 TMC पानी का फ्लो SRSP में पहुंच गया है और मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली बारिश से प्रोजेक्ट में 15.046 क्यूकस इनफ्लो दाखिल होने का इजहार किया। इसी तरह से पानी के इनफ्लो में सापहर तक मजीद इजाफा होने का इम्कान है और काकतिया किनाल को 50 क्यूकस एक्सकैप गेट के तहत गोदावरी में 50 क्यूकस पानी की जुआई अमल में लाई जा रही है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091.00 फीट, बरोज़े हफ्ता सापहर तक 1087.60 फीट 24.616 TMC ज़ख़राब होने का इजहार किया। एक्सेला एजुकेशन ग्रुप के ज़ेरे निगरानी में मुनाक़िद होने वाले बैनुल अक़वामी तालीमी मेले का मियां नीतू किरण ने इफ्तिताह अमल में लाया। ज़िले निज़ामाबाद में एक्सेला एजुकेशन ग्रुप के ज़ेरे निगरानी में शहर की हरीता होटल में मुनाक़िदा बैनुल अक़वामी तालीमी मेले में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तौर पर मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत की। वो दीप रोशन करते हुए इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मियां नीतू किरण ने खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों में बहुत से तालिब इल्म खलीजी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए कोशिश है, लेकिन इस ताल्लुक से तलबा व तालिबात को सही मालूमात न होने के बायस तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज खलीजी ममालिक में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को एक्सेला एजुकेशन ग्रुप के ज़ेरे निगरानी में बैनुल अक़वामी तालीमी मेले मुनक़िद करते हुए तलबा को मालूमात फ्राहम की जा रही हैं, जिससे तमाम तलबा इस्तिफ़ादा करते हुए इस सुनहरे मौक़े से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। విద్య అనేది ఎంత గొప్ప వరమో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి విద్యార్థులకు తెలిసిన విషయమే. అలాంటిది ఎంతోమంది కష్టపడి 10th వరకు అలా చదువుతూ పై స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా నడుస్తున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే విదేశాలలో చదువుకోవాలని అందరు పిల్లలు కూడా కలలు కంటున్నటువంటి విషయం ఇది. आंध्र प्रदेश के रहने वाले मानिकंथा की बासर नदी में गरक़ाब खुसूसी पूजा पाठ के लिए बासर आने का अफराद ख़ानदान ने किया इजहार। अफराद ख़ानदान में गम की लहर। बासर की गोदावरी नदी में से 14 साल मानिकंथा इत्तेफाकी हादसे के सबब पानी में गिरने के बाद फौत हो गया, जो कि रियासत आंध्र प्रदेश उनुगुलु प्रकाशम जिले कंदाकुरु मंडल पनुलुरु देहात से ताल्लुक़ रखने वाले के तौर पर शनाख्त की गई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँच गए, मगर फौतशुदा लड़के के अफराद खानदान की जानिब से मनादिर कमेटी की जानिब से लापरवाही व सही इंतजामात न होने की वजह से लड़का फौत होने का इजहार किया। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद क्रिकेट टूर्नामेंट में कामयाब तलबा को रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात की फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में दिलचस्पी लेकर मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ इंटरनेशनल क्रिकेटर सुनील गावस्कर, क्रिस ग्रील व दीगर ने शिरकत की। You all just thought that there are only 2 professional cricketers here. Listen, please. There are actually 3 professional cricketers here. I am pleased to welcome forward a young lady who is representing. ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MP नारायण रेड्डी की शरीक हयात मुस्को पद्मावती की आखिरी रसूमात में रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी के अरकान ख़ानदान ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर अनजानी साबिक़ MP मशहूर मारूफ एडवोकेट पंडित नारायण रेड्डी की शरीक हयात श्रीमती मुस्को पद्मावती कुछ रोज से अलील होने के बाद शहर की होप हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए आज सुबह के अव्वलिन सातों में फौत हो जाने की बिना पर दिचपल्ली मंडल के मुकाम पर धर्माराम बी देहात के क्रोशी दर्शन मुकाम पर मरहूम पद्मावती की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में एडवोकेट, डॉक्टर्स व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन मंडल के हुंसा देहात में गांव की ईद का शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद बोधन मंडल के मुकाम पर मुकामी अवाम की जानिब से ज़्यादा बारिश व खेत खलियान में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार
होने के साथ साथ तमाम अवाम को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने के लिए हुंसा देहात में गाँव के ईद मुनाकिद की गई, जिस पर देहात में मुकीम खवातीन ने अपने घरों से बोनाल निकालते हुए नजर आए। इस मौके पर दीगर अफराद की जानिब से करतबबाजी पेश की गई। బోనాల పండుగలతోని అందరూ సుఖశాంతులతోని అన్నిటితోని సుఖంగా ఉండాలని ఈ పండుగలను మరి నాట్యాలతోని గోత్రాదులతోని అన్నిటితోని మరి కరోనా వచ్చింది। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वाशिंगटन डीसी में आटा की 17वें कन्वेंशन में रुकन कानून साज कौंसिल कविता, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का शानदार इस्तेमाल व खिताब। टीआरएस व केसीआर के पूरे मुल्क में बढ़ती मकबूलियत से बीजेपी खौफजदा। बीजेपी के इजलास का तेलंगाना में इनेकाद, इनके खौफ को कर रहा जाहिर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी। अराजी तनाज़े को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान चाकू जनी कामारेड्डी से पेश आया वाकया, महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज। रिफात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज निजामाबाद की जानिब से नौजवान व ताजिरों के लिए शौर बेदारी इजलास का इनेकाद व तिजारती ताल्लुकात व इस्लामी तर्ज तिजारत से करवाया गया वाक़ई। बकरीद के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी, कुर्बानी के जानवरों की आसमान छूती कीमतों से मुतवस्सित तबके की अवाम परेशान, तो बारिश के सबब ताजिर खौफजदा। बासर पूजा के लिए आने वाला शख्स गरकाब, गौतखोरों की कड़ी मेहनत से नाश को निकाला गया बाहर, अफराद खानदान में गम की लहर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।